નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં આજે આપણે વાત કરીશું હિન્દી ભાષાની. હા, કારણ કે વાત કરીએ તો 14મી સપ્ટેમ્બર અને ખાસ કરીને હિન્દી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આપને થતું હશે કે વિશ્વ હિન્દી દિવસ આપણે 10 જાન્યુઆરીએ મનાવીએ છીએ, પરંતુ જે 14 સપ્ટેમ્બર છે તેને રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આની પણ આપણે આજે વાત કરીશું. આપણી સાથે ખાસ મહેમાનો પણ જોડાશે, એટલે તેમની સાથે આ પણ આપણે મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. આજે વાત કરીએ તો ખાસ જે હિન્દી દિવસ છે, વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા જે પ્રકારે સૌપ્રથમ તેની શરૂઆત જે કરવામાં આવી, મનાવવામાં આવ્યો. અત્યારે જે હિન્દી ભાષા આપણે વાત કરીએ તો ભારતમાં રાજભાષા તરીકે સર્વસ્વીકૃત ભાષા છે. હિન્દી ભાષાની આપણે વાત કરીએ, થોડા દિવસ પહેલાં આપ જાણતા હશો કે આ એક મુદ્દો ઉઠ્યો હતો, કોઈ સેલિબ્રિટી દ્વારા તેવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ આ મુદ્દો ઉઠ્યો હતો અને તેમણે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી નથી, રાજભાષા હિન્દી છે. એટલે કે ત્યારથી આ મુદ્દો છે તે ચર્ચાનો વિષય ચોક્કસથી બન્યો હતો, પરંતુ રાજભાષા તરીકે હિન્દી અત્યારે સર્વસ્વીકૃત છે. વાત કરીએ તો આ હિન્દી ભાષાના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે જે પ્રકારે મોટે પાયે જે પ્રકારે કાર્યક્રમો પણ થયા છે. કચ્છની વાત કરીએ, 60 વર્ષ પહેલાં ખૂબ જ મોટા પાયે તેનો પ્રચાર પ્રસાર છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યારે વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય હિન્દી સંસ્થાન પણ આપણે ત્યાં જે 1962માં સરકારે જે પ્રકારે સ્થાપ્યું હતું. હાલ વાત કરીએ તો હાલ 170થી વધારે વિશ્વવિદ્યાલયો છે કે જ્યાં હિન્દીનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ હાલ આપણે વાત કરીએ તો જે હિન્દી બાળકો છે તેઓ હિન્દીમાં શિક્ષણ લેવા માટે રુચિ ધરાવે છે કે કેમ? અત્યારે હિન્દીની વાત કરીએ તો ચોથી જે પ્રકારે સૌથી વધુ બોલાતી આ ભાષા છે મેન્ડરિન, સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, અને ત્યારબાદ હિન્દી ભાષા આવે છે કે જે સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે. વિદેશમાં પણ આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા ભારતીયો ત્યાં વસે છે અને હિન્દી તરીકે તેનો ઉપયોગ પણ ઘણી બધી થતો હોય છે. પરંતુ હાલની આ સ્થિતિની આપણે વાત કરીશું. બાળકોને કેટલી રુચિ છે તેમાં, જે સ્નાતક થઈને જે પ્રકારે ભૂતકાળમાં ઘણું બધું આપણે જોયું છે કે હિન્દીમાં સ્નાતક થઈને આગળ પણ ઘણા બધા જે લોકો વધ્યા છે, પરંતુ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓને કેટલો રસ છે હિન્દી વિષયમાં આગળ જવા માટે, આ તમામ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા સાથે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે. આપણી સાથે સૌથી પહેલાં ડૉક્ટર ઋષપાલ દિવાન છે, વરિષ્ઠ હિન્દી સાહિત્યકાર, અને સાથે જ આપણી સાથે સત્યમ જોશી છે જે હિન્दी प्रेमी છે. બંનેનું સ્વાગત છે निर्माण न्यूज़ में. સૌથી પહેલા दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं दीवान जी. सबसे पहले जो हिंदी दिवस है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज का ये खास दिन है, सभी हिंदी प्रेमियों को, देश की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी देशवासियों को, खास तरह से अपने गुजरात के वासियों को, पूरे देश के वासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. जैसे हमारा कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, ऐसे ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है. और इस बहाने हम हिंदी की चर्चा करते हैं. राष्ट्रभाषा तो नहीं है, राजभाषा की चर्चा करते हैं. और कुछ कार्यक्रम सरकारी भी होते हैं और गैर सरकारी भी होते हैं. और हम अपने संकल्प को हम पक्का करते हैं कि हाँ, हमें हिंदी को और आगे बढ़ाना है. हालांकि कुछ अपने गुणों रही है, लेकिन हमें उसमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है. चाहते हैं कि हिंदी जन जन की भाषा हो और पूरे विश्व में और राष्ट्रभाषा के रूप में देश में भी स्थापित हो और यूएनओ में भी जहाँ इसकी आवश्यकता है. જી સત્યમભાઈ, આપ શું કહેશો? જે પ્રકારે વાત કરી કે સંકલ્પની પણ વાત કરી કે ઠેર ઠેર ભાષા છે તે વધુ ને વધુ આગળ વધે, આપ સૌથી પહેલા એની પણ વાત કરીશું આપણે, પરંતુ સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા શું છે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસને લઈને? पहले तो हिंदी दिवस है तो सभी को, देशवासियों को, गुजरात वासियों को, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हिंदी दिवस है तो हिंदी में आप इतना, पहले तो आपको भी सराहना करते कि गुजराती चैनल होते हुए भी आप हिंदी में ये इस तरह का प्रमोशन ही कर रहे हैं, तो वो हम सभी के लिए वो बहुत बड़ी बात है. भाषी के लिए तो है, लेकिन गुजरात में और हिंदी प्रांत में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार, मीडिया, आप जैसे मीडिया वाले सब इकट्ठे होके अगर अपने आप में अच्छा होने वाला है, बात होने वाली है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी. और
मानता हूँ कि हिंदी वाली है ही आगे है। और युवा भी अभी सोशल मीडिया से हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे वो लोग अपनी बात वो अपनी भाषा में, या गुजराती हो तो गुजराती में या हिंदी में अपनी बात रखने का प्रावधान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी अंग्रेजी में ही करते, हैशटैग करके भी वो लोग हिंदी को सपोर्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हिंदी के लिए आज युवा भी बहुत रहा है और भी रहा है। और जैसे बताया कि इतनी यूनिवर्सिटी, तो यही आंकड़ा भी दिखा है कि हिंदी पढ़ने वाले તો આજે હિન્દી દિવસ છે એટલે કે હવે આગળ જે प्रकार બંને મહેમાન આપણી સાથે છે તો दोनों को मैं कहूँगा कि अभी हम हिंदी में ही आप आज आगे भी बातचीत करेंगे। सत्यम जी, जिस प्रकार से आपने बोला कि हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, पर जो बच्चा होता है बचपन से ही, जो परिवार होता है उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है। अभी हिंदी के जो बच्चे हैं उनमें और जो उनके माता पिता है वो कितना रुचि दिखाते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी माध्यम में आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि माता पिता अभी आज के युग में माता पिता क्या सोचते हैं उससे ज्यादा अभी ये चीज हो गई कि विद्यार्थी जो है वो अपने आप वो डिसीजन लेता है कि मुझे अभी हिंदी में ही पढ़ना है। आपने बात बताई तो मैं बता दूं कि भारत के बाहर भी आज 150 विश्वविद्यालय है ही है। लेकिन हम भारत की अगर बात करें तो बीबीए और एमबीए जैसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा में है। हाँ, तो वहां से बीबीए और एमबीए अभी हिंदी में लोग करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है जहाँ हिंदी माध्यम से बीई, इकोनॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ वहां से हो रहा है। तो आने वाले सरकार की जो नीतियां है और जो विद्यार्थियों को रस है, इसीलिए वो लोग हिंदी में इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और आने वाला दिन हिंदी के बिना चलने वाला ही नहीं है। विश्व में भी कहीं पे भी आप जाइए, आज चाइना में जाइए या अन्य देशों में जाइए, तो वो लोग भी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर उनको भारत में बिजनेस करना है या कुछ काम करना है व्यवसाय, तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वो मार्केट है ऑलरेडी। आज आपके पत्रकारिता में भी देखिए सबसे अच्छे तनख्वाह जिनको मिलती है या बड़े बड़े जो पत्रकार है, तो वो लोग क्या है, वो लोग हिंदी में ही है ज्यादा से ज्यादा लोग। तो हर एक फील्ड में हिंदी आगे ही है। अभी खेल कूद का भी ले लो तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी देखो या कहीं और भी आप देखो, टेलीविजन के माध्यम एंटरटेनमेंट में देखो, सभी जगह पे हिंदी छाई हुई है और हिंदी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। रिशपाल जी, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अभी सत्यम जी ने बोला कि अभी स्नातक की डिग्री हो वो भी हिंदी में कर रहे हैं, ऐसी कॉलेजेस भी है, पर पहले से ज़्यादा जो बच्चे अभी जा रहे हैं कि फिर जो संख्या है वो वर्ष प्रति वर्ष वो कम होती जा रही है। आपको क्या स्थिति अभी नज़र आ रही है उसकी? देखिए, हाँ, वो बात आपकी सही है एक मायने में, क्योंकि क्या होता है दरअसल, जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे और ये अंग्रेजी लोगों ने जो सीखी थी उस समय, वो अंग्रेजी से प्रेम था इस कारण नहीं सीखी थी। उन्होंने इसलिए सीखी थी कि अंग्रेजी पढ़ने से उनको उनका प्रभाव बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा, उनका पद बढ़ेगा, उनका नौकरी मिलेगी उनको। तो जब कोई भाषा रोजगार से जुड़ी जाती है तो उसको तरफ लोग दौड़ते हैं। अभी बीच में यह हुआ स्थिति, थोड़ा गुलाम की मानसिकता अभी धीरे धीरे हट रही है। बोलता है अंग्रेजी, बस वो विद्वान है जो प्रांतीय भाषा बोलता, गुजराती बोलता, वो कुछ नहीं जानता, ये सामान्य हो गया था। तो इसलिए कुकर कुत्तों की तरह ये अंग्रेजी स्कूल बहुत पनप गए गली गली में। लेकिन अभी स्थिति बदल रही है। अभी तो ये दूसरे लोग भी करें। देखिए, भारत से बड़ा व्यापार है और यहाँ से ज्यादा बोले 70 हिंदी बोलने वाले। और देखा तो एक कुछ थी वो हिंदी बोल, टूटी फूटी
में बोलना कोई अज्ञानता की निशानी है। ये जो समझते थे लोग वो धीरे धीरे जा रहा है। मानना है कि स्वाभिमान जो भावना, इस एक राष्ट्र प्रेम की भावना काफी प्रबल हो रही है, जो अच्छा संकेत है किसी भी देश की प्रगति के लिए। तो वही प्रेम राष्ट्रभाषा के प्रति भी मैं सब देख रहा हूँ कि लोग अब हिंद भावना महसूस नहीं करते, हिंदी में बोलने में हिंद भावना महसूस नहीं करते, पहले करते थे। तो धीरे धीरे बदलेगा, लोग हिंदी तरफ जाएंगे, मेरा मानना ऐसा है। जी सत्यम जी, जो अभी राष्ट्रभाषा हम बात करें हिंदी और राजभाषा बात, राष्ट्रभाषा तो नहीं हो पाई क्योंकि जो इतिहास हम देखें तो कुछ मत मतांतर थे, उसके लिए उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अभी जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी का प्रचार करना ज़रूरी है या नहीं है, आप क्या मानते हैं उसमें? नहीं, अभी हिमानी जी ने वही बात बताई ना कि रोजगार से अगर बात जुड़ती है तो रोजगार की बात तो अहिंदी प्रांत हो या हिंदी प्रांत हो, दोनों जगह पे वो तो रोजगार है। तो अगर रोजगार के लिए अगर भाषा को अगर रोजगार से साथ जुड़ते हैं तो वो कोई भी स्टेट होगा, वो चाहे हिंदी हो कि ना हिंदी हो, उनको सीखना ही पड़ेगा और उसमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और हिंदी प्रांत वाले होते हैं वो तो हिंदी टूटी फूटी भी बोल देते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं। लेकिन उनका तो दायित्व है और उनकी तो लैंग्वेज ही है हिंदी, तो उनको तो काफी प्रयास करने चाहिए और काफी साहित्य में उन्होंने काम किया है अभी तक। लेकिन अभी आने वाले समय में उन लोगों को साहित्य में तो काम करे वो तो अच्छा ही है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी के साथ वो लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि उनका जो साहित्य है वो उससे अभी टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख रहा है, पढ़ रहा है। तो ये सब डिजिटलाइज होना चाहिए और वो लोगों का मास्टरी जो है वो हिंदी भाषा में, उसके साथ साथ उनको वैज्ञानिक तौर पे भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स के साथ भी उनका सहयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। जी हिंदी ने बहुत सारी उपलब्धियां अभी प्राप्त की है। जो बात करें डॉक्टर ऋषिपाल जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसमें भी भारतीय शब्दों को स्थान दिया जाता है। वैसे क्या क्या उपलब्धि आप देखेंगे अभी तक जो विश्व लेवल पे हम बात करें हिंदी के लिए? हाँ देखिए, अभी जो नए नए सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं अभी भाषा में, अब तो देखेंगे आप कई सारे सॉफ्टवेयर, इसमें यूनिकोड वगैरह, इससे कि आप हिंदी में आप अच्छे से आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जमाना अभी ये डिजिटल जमाना है, अभी हाथ से लिखना तो लोग हमारे हमारे दौर के लोग लिख रहे हैं, मैं तो हाथ से आज भी लिखता हूँ, बाद में टाइप करता हूँ, लेकिन वो अभी आजकल के बच्चे तो हाथ से लिखते नहीं है, वो तो सीधे टाइप ही करते हैं। तो वहाँ अभी उसमें अभी लेकिन अच्छे अच्छे अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हिंदी अभी करना इतना मुश्किल भी नहीं रहा है। और मैं तो क्या मेरा तो क्या कि मेरा अनुभव रहा है इसमें इंडस्ट्रीज में रहा है, मैं सरकारी तंत्र में रहा हूँ, मैं ओएनजीसी में रहा हूँ। और मेरा संयोग से मुझे आसाम, त्रिपुरा, करना ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सभी प्रदेशों में काम करने का मुझे अवसर मिला है, और गुजरात में भी रहा हूँ। तो वहां भी जो है लोग मातृभाषा कुछ भी हो, लेकिन वहां जो हम तो, क्योंकि हम आंध्र प्रदेश गए 15 दिन के लिए, तो इतने दिन में हम वहाँ की भाषा तो सीख नहीं पाएंगे, हिंदी में बात करेंगे। तो वहाँ के लोग हिंदी बात करते हैं, और वहाँ के लोग भी इधर रोजगार के लिए तमाम आ ही रहे हैं अभी सब। तो वो सब हिंदी हिंदी तो आवश्यक है ही। और तकनीकी विषय में क्या होता है, देखिए जब हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, या और भी जो हमारा योग है, और भी चीजें हैं, वो सब संस्कृत में है, वो पहले तो उपलब्ध है। लेकिन जो जब ये आधुनिक विज्ञान जो 1600 के बाद जो विकसित हुआ ना, आधुनिक ज्ञान, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी ये विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान विकसित हुआ, वो कालखंड ऐसा था कि जब हम गुलाम थे, जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। तो वो जो ज्ञान हमारे पास आया वो सारा अंग्रेजी के माध्यम से आया है। तो अभी उसका काफी अनुवाद हो चुका है, उसके उसको अनुवाद करना एक तो बहुत बड़ा काम है, जरूरी हो भी रहा है। और वहाँ थोड़ा सा देखिए, कोई भाषा जो है ना या तो प्रयोग में जब नहीं होती तो वो कठिन लगने लगती है हमको। अभी आप मैंने अनुवाद का कार्य भी किया है, मतलब ओएनजीसी के लिए मैंने कई तकनीकी एक शब्दावली मैंने बनाई थी। तो वहां उसमें कई बार दिक्कत आती है, तो उसका अनुवाद आप, क्योंकि वहां अनुवाद जब आप करते हैं तो फिर आपको उस तकनीकी ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, भाषा का दोनों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए अच्छा, तब आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। क्योंकि शाब्दिक मैकेनिकल जो मशीन, उसमें अनुवाद नहीं कर सकती, आपको विवेक से काम करना पड़ता है। अब जैसे मान लिया अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर, अब फिल्म का डायरेक्टर है
और या किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो दोनों के लिए एक ही शब्द है। लेकिन हिंदी में तो बात नहीं बनेगी। हिंदी के लिए फिर उसको अलग करने के दो शब्द हैं। यानी कंपनी का डायरेक्टर उसको लोग निदेशक बोलेंगे, और अगर आप कहेंगे किसी फिल्म का डायरेक्टर उसके लिए निर्देशक। तो ये थोड़ा विवेक आपको रखना पड़ेगा, वो विवेक मशीन नहीं रख पाएगी। तो ये भी जरूरी है, अनुवाद करना, उसी पूरे ज्ञान को लाना। हालांकि बड़ा काम है, लेकिन हो रहा है, समय लगेगा। और दूसरे क्या है कि हमको एक अपनी तरफ से एक अपनत्व का भाव हिंदी के प्रति रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं यार ये अनुवाद तो कर दिया लेकिन बहुत कठिन है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। कि मैंने तो फेस की है। तो क्या होता है कि कोई शब्द अंग्रेजी का प्रचलन में वो चाहे भले कठिन हो, लेकिन आप उसको नहीं कहेंगे कठिन है। लेकिन हिंदी में आपने कर दिया तो कठिन हो। लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक शब्द का अनुवाद मैंने किया था। एक तेल उद्योग में एक शब्द केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं डिमल्सिफायर। एक केमिकल होता है डिमल्सिफायर, यानी जैसे इमल्स दूध तेल और पानी का जो एक बनता है मिश्रण, उसको इमल्शन बोलते हैं। और हिंदी में उसको बोलते हैं पायस, इमल्शन को। और जो इमल्शन को तोड़ देता है, यानी तेल और पानी को अलग कर देता है, उसको डिमल्सिफायर बोलते हैं। तो मैंने उसका अनुवाद किया था विपायसक। ठीक है। तो मेरे एक मित्र बोले यार विपायसक तो आम आदमी समझेगा नहीं, आपने क्या अनुवाद कर दिया, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बाहर चलते हैं। तो हम दोनों लैब से निकल के बाहर आए, एक चाय वाले के पास हम गल्ले पे आए। और उस चाय वाले से पूछा कि भाई विपायसक क्या होता, पता है तुझको? अरे वो कहना मुझे क्या पता विपायसक क्या होता। तो फिर मैंने कहा तुझे डिमल्सिफायर पता है क्या होता है? बोले मुझे क्या होता है डिमल्सिफायर। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा देखा, विपायसक नहीं, इसको डिमल्सिफायर भी नहीं पता है आम आदमी। तो उसको आप कठिन नहीं कर रहे हो, उसको आप कठिन नहीं कह रहे हो, आप विपायसक को कठिन कह रहे हो। तो क्योंकि आप वो ये जो तकनीकी जो शब्द हैं, ये आम आदमी के लिए नहीं है। बोलचाल में तो आप सरल भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, आम आदमी के लिए नहीं है। ये तो जो विशेषज्ञ उस फील्ड के उनके लिए है, तो वो तो समझ ही लेंगे, आज नहीं कल समझ जाएंगे, है ना। तो वो शब्द तो अंग्रेजी में भी कठिन है आम आदमी के लिए। तो वो थोड़ा कठिन तो ये कि प्रयोग के आधार पे, प्रयोग में हमें लगता है शब्द आसान हो जाते हैं। बहुत सारी बातें भी है। सत्यम जी, गुजरात की हम बात करें, गुजराती जो बच्चे हैं जो गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, नॉन 9th स्टैंडर्ड तक हम देखते हैं कि उसको हिंदी के जो सब्जेक्ट आता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड से जो उसको वैकल्पिक में दिया जाता है, हिंदी के ऑप्शन में संस्कृत दिया जाता है। हिंदी जो हम बात करें कि बहुत बड़ी बुक होती है उसकी, संस्कृत की छोटी होती है, तो ज़्यादातर बच्चे उसको संस्कृत के ही को ही उसको लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में हम बात करें, और इंग्लिश को फर्जियात वो उसको कर दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये अभी बच्चों अभी कभी क्या देखते हैं कि शॉर्ट वो देखते हैं कि भाई इसमें ज्यादा स्कोर आ जाएगा, इसके लिए वो लोग संस्कृत ले लेते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, या पेरेंट्स का दबाव भी उन पे होता है कि तुम अच्छे मार्क लाओगे तो तुम्हें अच्छी लाइन में जाना मिलेगा, मतलब तुम साइंस में जा सकते हो या कॉमर्स में जा सकते हो, वरना फिर आर्ट्स करना पड़ेगा अगर लैंग्वेज के साथ रहे तो। अगर आपको लैंग्वेज के अलावा और कोई लेते हो तो आपको ज्यादा विकल्प है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया वैसे कि पूरे विश्व में अभी बात करें तो 132 देशों में 2 करोड़ से लोग, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी में आज जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बोल रहे हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में भी जो कुरियन नामक जो पत्रिका है वो भी अभी हिंदी में प्रकाशित हो गई है। तो आने वाले दौर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जब हिंदी की मांग है, डिमांड है, तो बच्चे चाहे 9 स्टैंडर्ड तक भले ये हिंदी में पढ़े और बाद में वो विषय कोई भी ले, लेकिन उनको अगर रोजगार से जुड़ना है या आगे कुछ पढ़ना है, आज आज आप देखिए गवर्नमेंट में भी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो हिंदी की एग्जाम आपको दी होनी चाहिए बाहर की। आज सर को मालूम होगा कि मानी जी सबको। तो आज वो कई ऐसे आईएएस ऑफिसर जैसे बड़े या शिक्षक में जो आगे बढ़ रहे हैं प्रोफेसर लेवल के, वो भी अभी हिंदी में एक हिंदी की एग्जाम ही दे रहे हैं। और हमारे वहाँ गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की प्राथमिक प्रारंभिक प्रवेश परिचय कोविद रत्न जैसी एग्जामों में ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ साथ ये लोगों की अभी संख्या बढ़ रही है आने वाले दिनों में, कि वो लोगों को ये एग्जाम देनी पड़ती है क्योंकि सरकार की नीतियां जो है उसमें हिंदी आती है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको लाना है और वो सर्टिफिकेट अभ्यास के थ्रू ही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसी परीक्षाओं का भी अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है काम। तो
ये भले अभी ये आपको फॉर द टाइमिंग ये ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने शायद और कोई विकल्प चूज कर लिया, या तो सरकार के कुछ नीतियां होती है उसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आखिर में तो फिर बात घूम फिर के वहीं पे आने वाली है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी अगर आपको आती है तभी आपका काम होने वाला है। हिंदी नहीं आएगी तो अभी आपको कहीं पे भी चलने वाला नहीं है। रिशपाल जी, सरकार की बात करें हम, जिस प्रकार से मैंने बोला कि केंद्रीय हिंदी संस्थान जो बनाया गया था सरकार की ओर से, उसके बाद सरकार की जो कोशिश बोलते हैं कि समय पर ये हिंदी के लिए जो विश्वविद्यालय हैं, उसके लिए सरकार की कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे? इस इतने सालों आज़ादी के बाद की हम बात करें तो। हाँ, देखिए अभी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे कलाम साहब, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरा स्पष्ट मानना है कि 12वीं तक हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए हिंदी। लेकिन इस बात को ध्यान दिया नहीं गया। हालांकि गांधी जी भी इसके समर्थक रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन सभी इसके समर्थक रहे कि हिंदी को बढ़ाया जाए। और कलाम साहब ने तो अभी बोला था कि 12वीं तक हिंदी होनी चाहिए। और लेकिन ये थोड़ा सा हो रहा है कि अभी थोड़ा जो नई इसमें आ रही है। और एक बात और जो अच्छी बात इस समय, एक जो सकारात्मक बात जो इस समय देश के लिए है कि जिसका जो शीर्षस्थ जो नेतृत्व है इस समय, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सब जगह जाके हिंदी बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अभी G20 हुआ या कोई भी जितना भी बड़ा सम्मेलन इसमें देश के सब दुनिया के शीर्षस्थ लोग जहाँ उपस्थित है वहां हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी के लिए एक बल देने वाली चीज है कि ये दृश्य पहले कभी देखा नहीं गया कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं। वरना एक बार फादर फादर कामिल बुल के बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदी के, ऑस्ट्रिया के। तो एक बार वो उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि मैं एक बार हिंदुस्तान आया तो मैं यहाँ के राजनेताओं से मिला, और नेताओं से मैंने जैसे ही मैं हिंदी में बात करता था वो सब मुझसे अंग्रेजी में बात करते थे। हिंदुस्तान के नेता वो हिंदी बोल रहे हैं, विदेशी होकर ये हमारी ये हिंदी अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो मुझे इतना खराब लगा, तुम्हारी जब अपनी भाषा है तो तुम दूसरी भाषा का सहारा क्यों ले रहे हो? और देख, और अच्छा, दूसरे क्या कि एक ये भी फैला दी गई कि साहब हमको तकनीकी और उसके विज्ञान क्या हमको प्रगति के लिए हमको अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी का कल्याण नहीं होगा। ये भी एक भ्रांति है। देखिए आपको जो संसार के जो भी तकनीकी रूप से जो बहुत ही प्रगति जो प्रगतिशील जो राष्ट्र है, जैसे जापान है, या आपका चीन है, या फ्रांस है, जर्मनी है, या रूस है, इनमें कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। ये सब सारा वैज्ञानिक जो प्रगति हुई अपनी भाषा में ही है उनकी। फ्रांस की फ्रेंच में ही उसकी, जर्मन की तो वहां लेकिन साहित्य उपलब्ध है वो। क्योंकि क्या है, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा अनुवाद हो रहा है, लेकिन एक चीज और जरूरत है इससे हमारे यहाँ कंपलसरी कि लोगों को इसमें मौलिक चिंतन की आवश्यकता है हिंदी में। खाली अनुवाद से बात नहीं बनेगी। जो हम कर रहे हैं अंग्रेजी में सोचेंगे करेंगे फिर बाद में अनुवाद करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक मौलिक चिंतन, हमारा जो वैज्ञानिक जो तकनीकी चिंतन वो हिंदी में ही हो, उसकी तरफ बढ़ा जाए तो देश के लिए वो ज्यादा लाभप्रद होगा आगे के लिए। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने भी कहा कि भविष्य अच्छा है। सभी लोग चाहे सरकारी नीतियों के कारण या वैसे भी जो कंपलसरी है, जैसे आपको चीन वाले कंपनी आ रही है, अमेरिका कंपनी आ रही है, वहां के उन लोग वो हिंदी सीख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से जुड़ना है। तो ये बाध्यता भी है, संचार संचार माध्यमों की बाध्यता भी, कंपनी की बाध्यता भी, हिंदी की बाध्यता भी, हिंदी के लिए अच्छा भी है। तो मैं तो भविष्य उज्जवल देख रहा हूँ। जी जी। तो प्रधानमंत्री की भी बात हुई, साथ में अलग अलग देशों की भी बात हुई कि वहाँ पे खासकर यूरोप में कि उनके देश में उनकी ही भाषा, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है। इटली में तो अभी थोड़े दिन पहले उनकी सरकार ने इटली को ही कंफर्म कर दिया कि उसी भाषा में बात करनी होगी, उसी भाषा में जो भी जॉब है तो उसको वो उनको आनी ही चाहिए। दो चिंतन की भी ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात बोली है। अलग अलग देश में भाषा हमारी हिंदी बोली जाती है पर अलग अलग प्रकार से बोली जाती है, एक ही प्रकार नहीं। जैसे हिंदी हम इंडिया में जिस प्रकार से भारत में बात करते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से हिंदी बोली जाती है। इसके बारे में रिशपाल जी आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इसमें क्या देखिए थोड़ा अंतर आ जाता है। इसमें क्या है, देखिए बिल्कुल आप मानक हिंदी की जहां तक बात करते हैं तो अलग चीज है, मानक हिंदी तो एक है। लेकिन आप जो हिंदी भाषी लोग हैं उनसे थोड़ा उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते। और उसमें क्या होता है कि आप बोलें, थोड़ा सुधार करते जाएं। और कई बार क्या होता है कि आपको
और कई बार आपको बिल्कुल शुद्धता की बजाय आपको चीज मतलब तथ्य की बात आनी चाहिए, चाहे चीज समझ में आया किसी, तो कई बार उससे से पर्याप्त हो जाता है। अब यही मान लिया कि आप टिकट की खिड़की पे आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लिया आपने फॉर्म सही भर रहे हैं, तो ट्रेन छूट जा रही है आपकी, तो वहां अगर गलती भर देंगे तो चलेगा, क्योंकि आप ट्रेन में छूट जाए तो मतलब आपका जो है कार्य होना चाहिए। और वहां थोड़ा सा देखिए, भारत में भी तो देखो ना, आप हिंदी अलग अलग बोलियां हैं। आप जाएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ और है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ और हिंदी है, राजस्थान में कुछ और है हिंदी, वहां थोड़ा स्वरूप बदल जाता है। और विदेशों में तो थोड़ा प्रभाव आएगा ही, तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, विविधता को तो स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यम जी, अंत में खास संदेश लोगों को हिंदी दिवस पर क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भारत सरकार की भी 9,000 से ज्यादा वेबसाइटें भी अभी हिंदी में हो चुकी है। सर्वोच्च अदालत भी जो हमारी है, वहां पे भी अभी हिंदी को जजमेंट जो भी आते हैं वो भी अभी हिंदी में या अन्य प्रांत भाषाओं में उनको दिया जाता है। तो सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है, और हम सबको इकट्ठा होके, और आप सभी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबका अगर साथ और सहकार रहेगा तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा जाने दो। हमें अपनी भाषा का बढ़ावा हमें खुद करना है, युवाओं को साथ में रख के करना है, तो आने वाले दिन में हिंदी का बहुत बड़ा फ्यूचर रहेगा, और दुनिया में भी हिंदी का डंका बजने वाला है। जी डॉक्टर रिछपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और हिंदी के लिए वो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो की है दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.